Yes, sir. Good evening, all. Am I audible? Snell? Good. So we will start the program as we have no time for that so much because sir has only 1 hour's time. So welcome on behalf of Hyderabad Research Career Academy. I would like to request Snell to start the program. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes. Yes. Good evening. Good evening. Welcome today in a live program on mind, body medicine and meditation for a healthy life. National Doctors Day is celebrated on 1st of July every year in India. As we get involved in the emotional healing of others, we get healed emotionally ourselves. People will trust you, confide in you, and appreciate your efforts. National Doctors Day is an important day to recognize and honor the contributions of doctors and other healthcare professionals. Hence, I wish you a happy Doctors Day today to all doctors. Welcome on this platform on behalf of Ayurveda Research and Career Academy. And today we are organizing this program on mind, body medicine and meditation for the healthy life in association with Brahma Kumari's Vishwa Shanti Sarovar, Zamtha, Nagpur. I am Snehal and I look after as a coordinator of ARCA. Being on a time is always wonderful thing, and we ARCA is committed for on time to start off any program. That's why we started this on time, as we believe it is very good to be a punctual. As today we have eminent world famed motivational speaker, Dr. respected Dr. Sachin Parab sir, who is associated with Brahma Kumaris. As you know, Brahma Kumari is a worldwide spiritual movement dedicated to personal transformation and world renewal. Brahma Kumari has spread over 110 countries on the all continents and has had extensive impact in many sectors as an international NGO. However, there are real commitment into helping individuals transform their perspective of the world from material to spiritual. It supports the cultivation of a deep collective consciousness of peace and of the individual dignity of each soul. Now, I would like to tell a brief about our academy. Ayurveda Research and Career Academy, that is ARCA, is founded pretending to develop the skills required for research among Ayurveda aspirants. Ayurveda Research and Career Academy has created a platform for the upcoming Ayurveda aspirants to encourage research work through active assistance. It also provides the appropriate information about future opportunities, upcoming important events in Ayurveda and related field needed to the aspirant up to date by the way of this portal. Our mission is to serve society through excellence in Ayurveda and public health education. For that, we continue trying to focus and improve ourselves through the quality of education and the materials related to the examination we provides the latest updates in Ayurveda, efficiencies of our methodologies, quality improvement, truthfulness towards students, parents, society, and nation. Today, for this program, we have Brahma Kumari Manisha Didi. I would like to introduce her in a brief. राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनीषा दीदी जी, आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। आप बचपन में ही इन विद्यालय के समर्पक में आए। आपका जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ। आपको ईश्वरीय कार्य में रुचि होने के कारण आपने 1989 में ईश्वरीय सेवार्थ अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित किया है। आप पिछले 31 साल से समर्पित रूप से अपने सेवाएं दे रहे हैं। आपने अमरावती यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। आपको किसी भी विषय पर व्याख्यान देने की विशेषता हासिल है। आपने विभिन्न अनेक विषयों पर जैसे कि तनाव मुक्त जीवन शैली, क्रोध मुक्त जीवन, पॉजिटिव थॉट्स, खुशनम जीवन, सेल्फ मैनेजमेंट, व्यसन मुक्ति जीवन आदि अनेक विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। आपने अनेकानेक सरकारी ऑफिसेस, कई कॉलेजेस, कंपनियों में जैसे कि JSW, ASPAT स्टील लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज, सेंट्रल रेलवे, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेजेस, शिवाजी साइंस कॉलेज आदि विभिन्न जगहों पर राजयोग के माध्यम से आंतरिक शक्तियों का विकास कर जीवन में सुख, शांति और खुशी के जैसे बढ़ाया जाए, उसका उचित मार्गदर्शन दिया है। Now, I requested Manisha Didi to express her view in short.
मनीषा दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है? यस यस, ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है आपकी। ओम शांति मैम। ओम शांति। आज सर्वप्रथम आप सभी को 1 जुलाई डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज के इस दिन को मनाते हुए अपने ब्रह्मा कुमारी के साथ आज इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1936 में हुई है और वर्तमान में इसके 140 से भी अधिक देशों में हमारे सेवा केंद्र चलते हैं। ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आज एक पहले जो गलतफहमियां थी वो आज नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हमें स्वयं का अध्ययन करना सिखाता है, स्वयं पर अनुशासन कैसे करना है वो सिखाता है। हमारे रोजमर्रा जीवन में आने वाली अनेक परिस्थितियों के बीच गुजरते हुए कितने बातों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ता है, तो उसके जो नेगेटिव प्रभाव है उससे कैसे हम दूर रह सकते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति में कूल रखते हुए एकदम स्टेबल रख सकते हैं। तो ये सारा मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो हमारे स्पिरिचुअल कोर्सेस चलते हैं, राजयोग मेडिटेशन कोर्स जिसको हम कहते हैं, इस कोर्स के द्वारा दिए जाते हैं। और राजयोग मेडिटेशन कोर्स जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग को डेवलप करता है, अपने आप को एक सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए कैसे जीवन के अंदर हर परिस्थिति में भी हम अपने आप को एक कैसे स्थिर रख सकते हैं, इसका मार्गदर्शन देता है। हम यही कहेंगे कि आपका एक मेडिकल साइंस का फील्ड है, हमारा स्पिरिचुअलिटी का फील्ड है और दोनों ही फील्ड आज मानवता को हीलिंग दे रहे हैं। और इसीलिए आज हमें बहुत खुशी है कि हम सब ने मिलकर के आज इस डॉक्टर्स डे को मनाने का संकल्प किया है और उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसके लिए आज बहुत खुशी है कि डॉक्टर सचिन परब आज हमारे इस विद्यालय के जो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो स्वयं भी एक डॉक्टर है, आज हमारे साथ जुड़े हैं। खास मेडिटेशन के बारे में आप सबको सुनाएंगे कि मेडिटेशन टेक्निक को कैसे अपने रोज के जीवन के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके हमारे मेडिटेशन के कोर्सेज नागपुर में जो विश्व शांति सरोवर हमारा रिट्रीट सेंटर है, वहां पर मेडिटेशन का रूम भी बना हुआ है, म्यूजियम भी है और नागपुर शहर में भी हमारे विभिन्न स्थानों पर 15 सेवा केंद्र हैं, वहां पर भी ये कोर्सेज दिए जाते हैं। तो आप सभी को इस विद्यालय की ओर से मैं निमंत्रण देती हूँ कि आप ये राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए अवश्य आए। और आज इस आयोजन के लिए खासकर डॉक्टर डांगा सर और ARCA की पूरी डॉक्टर्स की टीम और हमारे डॉक्टर सचिन भाई जी को भी डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। ओम शांति। Thanks, Brahma Kumari Manisha Didi, for your inspirational talk. Now, I would like to introduce today's our speaker, world famed, globally recognized corporate trainer, motivational speaker, respected Dr. Sachin Parab sir. Dr. Sachin Parab sir has completed his MBBS from Mumbai, MBA in self and disaster management, MSc from counseling and hypnotherapy, also yoga and spirituality, PGDVIH diploma in values in healthcare, BA values and spirituality, PDCR in clinical research. Also, he is a regular speaker of Peace of Mind channel with top rated special program Secret of Ultimate Living aired in over 40 countries. He is project director global initiative on tobacco awareness program. He is the national coordinator My India Addiction Free India Companion Associate Coordinator and Facilitator Vihasa India. Consultant for Indian Pharmaceutical and Research Organization, Joint Secretary Medical Wing of REF Raj Yoga Education and Research Foundation, practicing and teaching Raj Yoga meditation since 27 years. He is also recipient of Mahatma Gandhi De-Addiction Award from Government of Maharashtra.
He is a recipient of Adarsh Doctor Award and Rotary Service Award and author of motivational book समस्याओं से समाधान तक. This is a brief about our today's eminent speaker, Honorable Dr. Sachin Parab sir. So now I would like to request Dr. Sachin Parab sir to start his session. Thank you so much. ओम शांति। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, यस, आपका आवाज आ रहा है और स्क्रीन भी विजिबल है सर। यस पीपीटी भी दिखाई दे रहा है? यस सर, पर पीपीटी को प्ले कर दीजिए सर। जस्ट स्टार्ट योर पीपीटी, स्लाइड शो स्टार्ट करिए सर। यस आ रहा है? पहला स्लाइड दिखाई दिया? नहीं नहीं, सारे स्लाइड दिखाई दे रहे सर एट ए टाइम। आप स्लाइड शो स्टार्ट करिए। ये ऐसे दिखाई दे रहा है? हाँ सर, पूरे स्लाइड दिख रहे हैं। बोले तो 5 पहले लाइन में, 5। अभी नहीं सर, नहीं, अभी एक बार नहीं। क्या करिए। ठीक है, मैं क्लोज करके वापस चालू करता हूं। यस सर, यस। अभी डबल क्लिक कर दीजिए सर। सब फर्स्ट स्लाइड है ना, उसको डबल क्लिक करके जो 100 है ना यहाँ पे। वो पता है मुझे। यस यस सर, नाउ इट इज विजिबल। जस्ट स्टार्ट योर पीपीटी सर। यस। नहीं तो फुल स्क्रीन आ रहा है कि केवल हाफ स्क्रीन आ रहा है? फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, फुल स्क्रीन आने का है अभी। अभी मेरे यहाँ तो फुल स्क्रीन आ रहा है। नहीं सर। अच्छा, एक मिनट। अभी फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं, सिंगल स्लाइड ही दिख रहा है अभी, फुल स्लाइड नहीं है। चलो हम ये साइड का व्यू सही चालू करते हैं। ओके, श्योर सर, श्योर। मेरे यहाँ पे तो फुल स्क्रीन आ रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्लाइड शो स्टार्ट नहीं हुआ सर, शायद इसीलिए हो सकता है। नहीं, स्लाइड शो मैं कर रहा हूँ यहाँ से, पर स्लाइड शो नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो एक काम करिए ना सर, यहाँ जो नीचे जो 80% के बाजू में एक सिंबल है सर, उसको क्लिक करिए। हाँ, उसके इधर ये जो है ना, हाँ, उसको क्लिक करिए सर। किया मैंने क्लिक। मेरे यहाँ फुल स्क्रीन आ रहा है, आपके यहाँ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। ओके सर, कोई बात नहीं, स्टार्ट, कोई बात नहीं सर, आप स्टार्ट करिए सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। मेरे पास अभी 40 मिनट है, मेरा फुल स्टेशन है नेक्स्ट, इसलिए मैं शॉर्ट में रहूंगा। जी सर। सबसे पहले सभी डॉक्टर्स को आज डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। माइंड बॉडी मेडिसिन ये एलोपैथी के लिए नई बात है, लेकिन आयुर्वेदा और होम्योपैथी इसमें विश्वास रखते हैं। आयुर्वेदा सबसे पुराना साइंस है, 5000 वर्ष पुराना, और इसमें आत्मा के ऊपर चैप्टर्स है, 64 चैप्टर्स चरक संहिता में। और आयुर्वेद में बहुत गहराई से पंचकोशा के बारे में वर्णन है योग शास्त्र में, जो एलोपैथी अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है, हो भविष्य में पहुंच जाएगा। और होम्योपैथी में वाइटल फोर्स के बारे में वर्णन है, जो भी एक इम्पॉर्टेंट पैथी है। आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। मेरी पहली स्लाइड है क्रेबियोजिन स्टोरी और मिराकल। ये क्रेबियोजिन, अच्छा, ये स्टोरी जर्नल में आई थी 1960 के, हीलर विद इन, ये किताब में स्टोरी मेंशन है। एक पेशेंट को हॉजकिन लिम्फोमा नाम का ट्यूमर हुआ था। ये ट्यूमर पूरे बॉडी में फैलता है और वो लास्ट स्टेज में था। उस समय कोई दवाई नहीं थी हॉजकिन लिम्फोमा की, अभी तो अच्छी दवाई आई है। तो पेशेंट को पता था कि वो जाने वाला है अभी, लेकिन तभी वो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ता है कि एक नई दवाई जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है वो है क्रेबियोजिन। और पेशेंट जो डॉक्टर रिसर्च कर रहा है उसको अप्रोच करता है और उसको बोलता है कि मुझे ये दवाई दे दो।
तो डॉक्टर ने कहा ये तो अभी रिसर्च चल रहा है, हमको नहीं पता ये दवाई काम करेगी कि नहीं, लेकिन पेशेंट बहुत इंसिस्ट करता है। तो पेशेंट को उस ट्रायल में लिया जाता है और उसको क्रेबियोजिन देते ही उसका पूरे ट्यूमर्स डिसॉल्व हो जाते हैं। पेशेंट खुश हो जाता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट होता है, उस इंटरिम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ रहता है कि क्रेबियोजिन सभी पेशेंट में काम नहीं करता है। पेशेंट वो रिपोर्ट पढ़ता है और उसके सभी ट्यूमर्स वापस आ जाते हैं। तो डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट ने रिपोर्ट पढ़ा इसलिए उसके ट्यूमर्स वापस आ गए। तो डॉक्टर फिर से एक ट्रिक प्ले करता है, पेशेंट को बोलता है कि पहले वाला क्रेबियोजिन था वो इम्प्योर था, अभी हमने उसके अंदर की इम्प्योरिटी निकाल दी, और डॉक्टर उसको डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन देते हैं और उस डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन से पेशेंट के ट्यूमर फिर से डिसॉल्व हो जाते हैं, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये कुछ समय तक चलता है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फाइनल रिजल्ट में ये लिखा हुआ रहता है कि क्रेबियोजिन किसी पेशेंट में काम नहीं करता है। तो पेशेंट वो रिपोर्ट पढ़ता है और एक हफ्ते के अंदर उसका शरीर छूट जाता है। ये क्लासिकल स्टोरी है कि कैसे हमारा मन काम करता है। सो माइंड कैन किल एंड माइंड कैन हील अ डिसीज। हमारे मन का बहुत बड़ा रोल है बीमारियों में। एलोपैथी में एक कब पता चला, तो 1970 में ये दो डॉक्टर्स थे, रॉबर्ट एडलर एंड इम्यूनोलॉजिस्ट निकोलस कोहेन। इन्होंने एक प्रयोग किया चूहों के ऊपर। इट वाज अ सेरेंडिपिटस डिस्कवरी, और जिसमें उन्होंने देखा कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। उन्होंने क्या देखा कि चूहों को सैकरीन का पानी, मीठा पानी बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने क्या किया, सैकरीन का पानी दिया और साथ में एक इंजेक्शन दिया जिसका नाम है साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड ये कैंसर की दवा है जिसके लेने के बाद बहुत उल्टियां वगैरह होती है। तो चूहों को बहुत उल्टियां होने लगी, तो सैकरीन का पानी के साथ इंजेक्शन देने से उनको उल्टियां होने लगी। अभी आगे डॉक्टर्स ने ये किया कि इंजेक्शन नहीं दिया, लेकिन केवल सैकरीन का पानी दिया तो भी चूहों को उल्टी होने लगे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे माइंड को इस तरह से कंडीशन कर सकते हैं, हमारा माइंड मेमोरी के साथ काम करता है। तो ये नया ब्रांच निकला एलोपैथी में, इसका नाम दिया गया साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, क्योंकि साइको माना माइंड या सोल, न्यूरो माना ब्रेन और इम्यूनोलॉजी माना प्रतिकार शक्ति। इसका रिजल्ट ये था कि लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया कि हमारे बिलीफ, हमारे मान्यताएं हैं, हमारे रिलेशनशिप्स है, इसका हमारे बीमारी के ऊपर असर पड़ता है। हम कैसे सोचते हैं, हमारी भावनाएं, हमारे दृष्टिकोण, इसके ऊपर बहुत सारा डेटा आने लगा। अभी कुछ लाइव स्टोरीज आपको बता रहे हैं। ये नॉर्मन कजिन्स नाम का पत्रकार था, इसको तो बीमारी हुई थी जिसका नाम था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आज भी नहीं है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बाम्बू स्पाइन होता है, माना वो पेशेंट झुक नहीं पाता है, टर्न नहीं कर पाता है। ये व्यक्ति को भी ये बीमारी हुई थी। लास्ट में ये लोग बेड पर आते हैं और उनका शरीर छूट जाता है। तो ये पेशेंट भी लास्ट स्टेज पर था। डॉक्टर ने कहा तुम ऐसे ही जाओगे, तो पेशेंट ने डिस्चार्ज लिया हॉस्पिटल से और उसने अपने आप को हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज लेके होटल में एडमिट किया। होटल में वो अपनी मर्जी से रहता था, डॉक्टर और नर्सेस उसको आके इंजेक्शन देते थे। लेकिन इसने एक प्लान किया, इसने सोचा कि मैं हंसते हंसते मरूंगा। तो ये रोज चार्ली चैपली और लॉरेल हार्डी के मूवीज देखता था और खूब हंसता था। और इसने देखा जब ये खुश रहता है तो इसको पेन किलर के इंजेक्शन की जरूरत कम पड़ती है। धीरे धीरे इसके इंजेक्शन कम हो गए, ये खड़ा रहने लगा, चलने लगा और पूरी तरह से ठीक हो गया। तो डॉक्टर को आश्चर्य लगा कि ये कैसे ठीक हो गया। तो डॉक्टर्स ने इसको कॉलेज में बुलाया, मेडिकल कॉलेज, और इसने फिर अपना अनुभव सुनाया कि खुश रहने से हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी होती है। फिर इसने इसके ऊपर किताब लिखा। ये किताब ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजिन्स। इसके बाद इसको हार्ट अटैक भी आया, उसको भी उसने सरवाइव किया और इसकी जो बीमारी थी उसके 26 साल बाद ये जिंदा रहा और 36 साल इसको हार्ट अटैक आने के बाद भी ये जिंदा रहा। तो इनक्योरेबल जो हम समझते हैं, ब्रह्मा कुमारी में हम कहते हैं कि इनक्योरेबल मीन्स
cannot be cured from outside, but one has to go inside to cure the disease. तो हम अपने अंदर जाके हमारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही ये लेडी है, लुई है, ये बहुत फेमस हुई क्योंकि इसको कैंसर हुआ था और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसने मना किया, इसने कहा मैं अपने आप को ठीक करूंगी, मुझे 3 महीने दे दो। तो इसने फॉरगिवनेस थेरेपी, क्षमा भाव को प्रैक्टिस किया और हीलिंग को प्रैक्टिस किया, माना न्यूट्रिशन, फॉरगिवनेस और थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, ये सब उसने प्रैक्टिस किया, इनिमा को प्रैक्टिस किया और इसने अपने बीमारी को ठीक किया। इस लेडी ने बहुत लैंडमार्क काम किया हुआ है। इसने हर बीमारी का एक मानसिक कारण दिया हुआ है कि कौन से विचारों से कौन सी बीमारी होती है और कौन से विचारों से बीमारी ठीक होती है। और ये वर्ल्ड की सबसे फेमस मेटाफिजिकल हीलर बनी, लुई है। इसका ये किताब 40 भाषा में ट्रांसलेट हो चुका है, डॉक्टर लुई है। और इसके बाद लोग इसके ऊपर सोचने लगे। ये डॉक्टर नॉर्मन कजिन्स ने कहा था कि हीलिंग सिस्टम हम सबके शरीर में होता है। एलोपैथी भी इसको मानता है, बाकी के पैथी तो मानते ही है। एलोपैथी मानता है कि हमारे बॉडी में एक हीलिंग सिस्टम है which mobilizes all the resources to combat the diseases। और हमारी हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली है हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं और ह्यूमर या खुशी से क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और इसके वजह से बहुत सारे हीलिंग हार्मोन्स निकलते हैं। तो आज डॉक्टर्स इसको स्वीकार करने लगे हैं। इसको प्लासिबो भी कहते हैं। प्लासिबो माना, प्लासिबो ये शब्द है, इसका मतलब है टू प्लीज माना। इसके ऊपर स्टडी ये हुआ है कि जैसे किसी को खून बढ़ाने की दवाई देते हैं तो उसका कलर लाल कलर का होता है, तो पेशेंट सोचता है ये लाल कलर माना मेरा खून बढ़ाने वाली गोली है। उसके अंदर कोई दवाई नहीं है, फिर भी वो उसका खून बढ़ने लगता है। इसको प्लासिबो कहते हैं। तो बहुत सारी दवाइयां प्लासिबो के साथ आजकल ट्रायल किया जाता है कि आपकी दवाई प्लासिबो से सुपीरियर है। तो प्लासिबो इज द विल टू लिव। हेल्थ क्या है ये अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। हेल्थ ये अंग्रेजी शब्द, अलग अलग शब्द है। हेल्थ, हीलिंग, होलिस्टिक, होली, ये सब ओरिजिनल शब्द होली से आए हैं। और हमारे यहाँ कहावत है ब्रह्मा कुमारी के, इफ यू आर होली देन एवरी डे इज अ हॉलीडे फॉर यू। ये 5 कोश की मैं बात कर रहा था जो आयुर्वेद के योग शास्त्र में वर्णन है। इसमें है बाहर सबसे अन्नमय कोशा, उसके अंदर प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है और उसके ऊपर ये सब लेयर्स है। हम इसके गहराई में जाने वाले हैं। मॉडर्न साइंस आज तक यहाँ तक पहुंचा नहीं है, धीरे धीरे पहुंचेगा, पर आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। और हम स्वास्थ्य की डेफिनेशन यहाँ पर देते हैं कि स्वास्थ्य माना स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। स्व माना सेल्फ माना सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट या स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, ये सोल है। अभी बीमारी कैसे आती है? तो बीमारी जड़ से आती है। हमारे मन के अंदर कोई भी डिस्कम्फर्ट होगा, कोई भी अस्वस्थता होगी तो धीरे धीरे वो बीमारी के रूप में आते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर ये ब्रांचेस को ठीक करते हैं, ऊपर की टहनी काटने से बीमारी ठीक नहीं होती है। हमको ये सिखाया जाता है साइकोसोमैटिक डिसीजेस है, माना सोमा माना शरीर और साइक माना आत्मा। तो बीमारी आत्मा से आती है या मन से आती है। आत्मा को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए माइंड बॉडी मेडिसिन इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट किया हुआ है। इसकी हम तुलना कर सकते हैं, जैसे ये गार्बेज होता है, कचरा पड़ा हुआ रहता है, उसमें से बदबू आती है, स्मेल आता है, क्योंकि नीचे जो कचरा पड़ा है वो थॉट के रूप में आता है। समझो किसी भी व्यक्ति को थॉट्स आते हैं अलग अलग, तो गार्बेज के रूप में आते हैं, माना बदबू के रूप में आते हैं, जो वो चाहता नहीं है फिर भी उसके विचार वैसे चलने लगते हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस से आते हैं। तो आज हम साइकोलॉजी में इसको मानते हैं कि इसको एबीसी कहते हैं, एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। माना जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है वो परिस्थिति को हम अर्थ देते हैं और उस अर्थ के वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आती है। इसको थोड़ा
हम डिटेल में देखेंगे। अभी डॉक्टर्स ने इसको शब्द इस्तेमाल किया स्ट्रेस रिस्पांस या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस। ये फिजियोलॉजी के फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है सभी डॉक्टर्स को। वॉल्टर कैनन रिस्पांस कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो हम या तो सामना करते हैं या भाग जाते हैं। और थर्ड रिस्पांस है फ्रीज, माना ठंडे पड़ जाते हैं। तो फाइट माना गुस्सा, फ्लाइट माना डर लगना, एंजाइटी, और फ्रीज माना डिप्रेशन। और इसके अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक, वो है रिलैक्सेशन रिस्पांस, जिसको कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, विच इज अगेंस्ट स्ट्रेस। तो आज हमारे पास डेटा है और हमें देख सकते हैं कि टेंशन में हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जैसे हम रिलैक्स होते हैं या मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड वेसल साइज, स्किन रेजिस्टेंस, ये सब कम हो जाते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये सब निगेटिव फैक्टर्स रिवर्स होते हैं, अल्फा रिस्पांस भी आता है। इसलिए मेडिटेशन के ऊपर बहुत रिसर्च आ रहा है। अभी लेटेस्ट डेटा हमको ये कहता है कि पहले हमको सिखाया जाता है कि जीन्स में सब कुछ है। तो पहले लोग डरते थे कि आपके घर में पिताजी को हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, तो आपको भी होगा। यस, आपको रिस्क है, लेकिन होगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं तो आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज का साइंस हमको ये कहता है वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। जीन्स को हम कंट्रोल करते हैं। जीन्स आर लाइक लोडेड गन एंड लाइफस्टाइल आर द ट्रिगर्स। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी रखते हैं तो हम जीन्स का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अभी लेटेस्ट साइंस जो आया है वो माइंड बॉडी मेडिसिन से सोल माइंड बॉडी मेडिसिन के तरफ आया है। माना आत्मा से मन के अंदर विचार आते हैं और मन का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में डॉक्टर दीपक चोपड़ा का बहुत फेमस कोट है कि इफ यू वांट टू नो योर thoughts in the past, look at your present body, and if you want to know your future body, look at your present thought। माना मनुष्य अगर वर्तमान समय अपने संकल्पों को श्रेष्ठ करे तो वो श्री कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकता है। ये हमारे मन के अंदर विचारों का चक्र चलता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारी भावनाएं और वैसे हमारा बिहेवियर रहता है। अभी हम क्या करते हैं, हम काउंसलिंग से ये बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर कोई सुबह उठते ही ऐसे विचार करता है कि कोई फायदा नहीं उठने का, मैं फिर से वही गलती करने वाला हूँ, मेरे जीवन का जीने का कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। कल मेरे को एक व्यक्ति मिला, वो कहता है अब सगळं काही संपलेलं आहे, मैंने सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करेगा, डिप्रेस महसूस करेगा और वो बिस्तर में ही पड़ा रहेगा और फिर से चादर लेके सो जाएगा। तो जैसे हम विचार करते हैं वैसे हमारी भावनाएं बनती है और वैसे हमारा बिहेवियर होता है। तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति का अलग विचार होता है, चिंता वाले के अलग विचार होते हैं और गुस्सा करने वाले के अलग विचार होते हैं। इसके ऊपर बहुत स्टडी हो चुकी है। मैं शॉर्ट में इतना बता रहा हूँ कि डिप्रेशन वाला सोचेगा आई एम वर्थलेस, मेरी कोई कीमत नहीं है, भविष्य में कुछ दिखाई देने वाला नहीं है और कुछ हो नहीं सकता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, जीने से मरना अच्छा है। जो चिंता वाला होगा वो हमेशा डरा हुआ रहेगा, कुछ तो खतरा है, कुछ तो बुरा होने वाला है, हमेशा उसके ऐसे ही विचार रहेंगे कि मेरे से कुछ हो नहीं सकता, मैं इस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और जो गुस्सा वाला है वो हमेशा सोचेगा कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, लाइफ इज अनफेयर, मेरा अपमान हुआ है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये विचार हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। आज हमारे पास ये डेटा है कि आप लंबे समय तक क्रिटिसिज्म, गिल्ट है, रिसेंटमेंट और एंगर है, इससे सभी बीमारियां होती है। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विकार है या वाइसेस है, उसी से ही बीमारियां पैदा होती है, वहां तक आज का साइंस आया हुआ है। और इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। एलोपैथी डॉक्टर इतना इजी से मानने वाले नहीं है। आप ये स्टडी देखो, ये स्टडी तो लैंडमार्क स्टडी रही है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश की गई, कि जिनको घुटनों का दर्द होता है तो एलोपैथी क्या करता है, इस घुटनों को दर्द के लिए वो एक ऑपरेशन करते हैं जिसको आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं।
तो डॉक्टर ने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को आर्थ्रोस्कोपी दिया गया और दूसरे ग्रुप को कहा कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आपको एनेस्थेसिया भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका नी को कवर किया जाएगा और 3 इंसिजन किए जाएंगे, कट किए जाएगा 1 सेंटीमीटर के, लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना ही होगा कि आपको ऊपर से लगेगा कि आपका ऑपरेशन हुआ है। तो क्या आप तैयार हैं? तो कई सारे पेशेंट तैयार नहीं हुए, कुछ लोग तैयार हो गए। लेकिन ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग रहा जब डॉक्टर ने ये दोनों ग्रुप बनाए और उनको स्टडी में लिया। 44% ने कहा हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी लोगों ने माना 50 के ऊपर 56% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इंटरेस्टिंग हमारे सामने रिजल्ट आया कि दोनों ग्रुप में कोई फर्क नहीं था पेन में, दोनों का पेन कम हो गया। इनफैक्ट जिसके अंदर सर्जरी हुई थी उनका कॉस्ट ज्यादा हुआ और उनको बाकी के रिस्क फैक्टर भी बढ़ गए। ये प्लासिबो कंट्रोल स्टडी कहते हैं। अगर हम ये स्टडी नहीं करते तो हमको मन का रोल पता ही नहीं चलता। ये स्टडी पब्लिश हुई थी न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन, 2002 की स्टडी है। तो ये बताता है कि हमारे मन का कितना रोल है, क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि हमारा ऑपरेशन हो गया है मतलब हम ठीक होने वाले हैं। ये विचार से ही इनकी बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर कुछ किया नहीं गया था। अभी जैसे प्लासिबो है वैसे ही नोसिबो करके एक इफेक्ट होता है। नोसिबो क्या है कि अगर पेशेंट डर रहा है कि मैं बीमार पड़ूंगा या मैं मर जाऊंगा तो वो भी काम करता है। तो पेशेंट का बिलीफ निगेटिवली भी काम करता है, इसको बोलते हैं नोसिबो। ये प्लासिबो के अगेंस्ट में है। तो नोसिबो के ऊपर भी स्टडी की गई कि कुछ पेशेंट को सैकरिन का पानी दिया गया और उनको सिर्फ इतना बताया गया कि ये उल्टी वाला पानी है, ये पीने से आपको उल्टी हो सकती है। तो 80% लोगों को उल्टी हुई और बीमार पड़ गए। ऐसे ही अस्थमा के पेशेंट को एक सिंपल सलाइन दिया गया नेबुलाइजेशन से, और अस्थमा के पेशेंट तो बहुत डरे हुए रहते हैं। उनको बोला कि ये जो पानी है ये इरिटेंट है, माना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो आपको इरिटेट होगा बहुत। और क्या हुआ, सिंपल सलाइन का पानी जाने से उनको फुल ब्लोन अस्थमा हो गया, सांस लेने में तकलीफ होगी, जो कि होना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं निगेटिव सजेशन। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी भी पेशेंट को निगेटिव सजेशन नहीं देना चाहिए, ना किसी व्यक्ति को, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट किया तो उसके अंदर वैसे चेंजेस आएंगे। आज हमारे पास बहुत सारा डेटा है कि हमारी भावनाएं, इमोशंस, ये बीमारी पैदा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सभी इमोशंस के ऊपर स्टडी हुआ है। इसमें मेजर निगेटिव इमोशन है गुस्सा, डिप्रेशन, चिंता, और रिप्रेशन माना अनकॉन्शियस सप्रेशन। और पॉजिटिव स्टेट्स में भी इफेक्ट हुआ है, स्टडी हुआ है कि जो स्नेह की भावना है, प्यार की भावना है, स्थित प्रज्ञ की भावना है, या सका ऑप्टिमिज्म माना आशावाद की भावना है, कॉन्फिडेंस, फ्रेंडलीनेस, हैप्पीनेस, इसका भी हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारी स्टडीज है, मैं ज्यादा में नहीं जाऊंगा। जो डाइवर्स लेते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जॉब चला जाता है तो भी इम्यूनिटी कम होती है, एग्जाम के वक्त अगर आपको चिंता है तो आपके हेल्पर टी सेल्स कम होते हैं, आपके नजदीक के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपके लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, और मेडिटेशन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एंगर के ऊपर बहुत सारे स्टडी है कि एंगर एक ऐसा इमोशन है जो हमारे अंदर बीमारी को पैदा करता है। कोई भी हार्ट अटैक आने के पहले कॉमनेस्ट इमोशन एंगर है, गुस्सा। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है अगर वो गुस्सा करता है तो उसका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, और ये लोग 2 से 3 गुना इनको चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के अगले डिकेड में, माना 10 साल में। जो लोग एंग्री होते हैं, बार बार जिनको गुस्सा आता है, उनकी आर्टरी बंद होने के चांसेस रहते हैं। ये तो अभी प्रूव हो चुका है कि एंगर इज अ रिस्क फैक्टर। और chronically hostile people have 1.5 times more chance of dying over a period of 25 years than who are not chronically angry. तो एंगर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एंगर केवल एक्सप्रेसिव एंगर नहीं, लेकिन आप जो दबा के रखते हैं एंगर, वो भी खतरनाक है। जो एंगर को दबा के रखते हैं, जिसको रिसेंटमेंट कहते हैं, बार बार उसको अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं।
दूसरा पॉजिटिव इमोशन जिसको हम TLC कहते हैं, डॉक्टर सभी जानते हैं TLC इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यहाँ पे TLC इज टेंडर लव केयर। जितना आप प्यार का अनुभव करेंगे, निस्वार्थ प्यार का, सच्चे प्यार का, तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम है। अंग्रेजी में भी वैसे इल को कहते हैं, इल माना आई लैक लव। जब प्यार की कमी होती है तब व्यक्ति बीमार पड़ता है। केयरिंग फॉर अदर्स बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। हमने देखा कोविड में हमारे कई सारे डॉक्टर्स ने ये महसूस किया, जिनके दिल के अंदर नेचुरली लव है फॉर अदर्स, तो उनका इम्यूनिटी बढ़ता है, उनको कोई बीमारी नहीं हुई। मेरे पास इसके बहुत केसेस है। हमारा ग्वालियर में भाई का हॉस्पिटल है, वो कहते हम लोग मास्क नहीं पहनते थे, हम पेशेंट को पीठ के ऊपर थपथपाते, आप डरो मत, हम आपके साथ है। उनको किसी को भी कोविड नहीं हुआ। मुझे अस्थमा की तकलीफ थी, अभी तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे एलर्जी है बार बार नाक के ऊपर। अभी जैसे मैं यहाँ पे इचल करंजी में हूँ तो यहाँ डस्ट है तो मुझे एलर्जी होती है, बार बार नाक के ऊपर हाथ जाता है। लेकिन अभी इसको रिस्क फैक्टर है कोविड में, क्योंकि आप वायरस को भेज रहे हैं, लेकिन मुझे 2 साल कोविड में काम करने के बाद कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कुछ नहीं होगा, और दिल में आपके प्यार है तो आप बचे रहेंगे। डॉक्टर्स ने ये भी स्टडी किया, 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को नाजी का मूवी दिखाया जिसमें वायलेंस है, और दूसरों को एक सेंट का मूवी दिखाया जो कि पेशेंट की सेवा कर रहे हैं। और दोनों का इन्होंने इम्यूनिटी देखा, तो देखा कि जिन्होंने वायलेंस का मूवी देखा, मारधाड़ का मूवी देखा, उनकी प्रतिकार शक्ति कम हो गए। तो आप सोचो, हमारे बच्चे दिन भर में वो वीडियो गेम या मूवीज देखते रहते, उनकी प्रतिकार शक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। और जिन्होंने संत का मूवी देखा, उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई, केवल मूवी देखने से बढ़ गई। तो आप सोचो, अगर आपके दिल में ये भावना उमड़ उठती है तो कितना अच्छा होगा। जो लोग खुश रहते हैं उनकी प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी है, उनके टी सेल्स बढ़ते, नेचुरल किलर सेल्स बढ़ते हैं। जिन ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को देखा कि जो लोग दुखी रहते हैं तो वो मर जाते हैं जल्दी। दुखी रहने वाले पेशेंट, जो खुश रहते हैं, उनका लाइफ लॉन्ग रहता है, लंबा रहता है। तो आज हमारे पास ये डेटा है कि जितना आप अपने ब्रेन को शांत रखेंगे मेडिटेशन के द्वारा, तो हमारा ब्रेन नॉर्मली बीटा स्टेज में रहता है। तो धीरे धीरे जैसे आप रिलैक्स होते हैं, आप अल्फा, थीटा, डेल्टा में चले जाते हैं। और इस अवस्था को साइंटिस्ट ने कहा रेस्टफुल, माना हाइपोमेटाबॉलिक वेकफुलनेस, माना आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है लेकिन आप बिल्कुल जागरूक रहते हैं। ये अवस्था नींद में आती है। बहुत लोग नींद में इस अवस्था को टच करते हैं, लेकिन जो अच्छे योगी है वो जागरूक अवस्था में इस स्टेज में पहुंच जाते हैं। आपने ये सुना होगा, ब्रह्मा कुमारी की दादी जानकी, इनके ऊपर ये प्रयोग किया गया, इनको इलेक्ट्रोड्स लगाए, और नॉर्मली डेल्टा स्टेज जो आती है डीप स्लीप में आती है, लेकिन दादी जानकी ने आंखें खुली, आंखें बंद, कैलकुलेशन करते वक्त दादी जानकी को गुस्सा दिलाया गया। उस सभी स्टेज में दादी ने डेल्टा स्टेज को मेंटेन किया। डेल्टा स्टेज की बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, पावरफुल स्टेज है। तो दादी जानकी को अवार्ड मिला, ब्रह्मा कुमारी की चीफ दादी जानकी, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो मेडिटेशन के ऊपर अभी बहुत रिसर्च हुआ है। ये साइंटिस्ट भारत के एक्स चीफ थे DRDO के, सेल्वा मूर्ति, उन्होंने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया कि राजयोगा माना कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट। माना हमारे अंदर एक लाइट है, अगर आप परमात्मा से स्वयं को जोड़ते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी शक्ति आती है। और ये किसी भी मेडिकल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। श्रीमद् भगवत गीता भारत का ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है नैनम चिंतन्ते शस्त्राणि, लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है कि हम आत्मा है। केवल आयुर्वेद में ये बताया गया है। तो हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन माना ह्यूमस सॉइल, और बीइंग माना सोल या एनर्जी। हमारे सभी रिसर्च ये सॉइल के ऊपर हुआ है, सब सिस्टम के ऊपर, सोल के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है। जबकि सोल हमारा ओरिजिनल नेचर है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है।
और किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा कहा कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग विथ ओकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग विथ ओकेजनल ह्यूमन एक्सपीरियंस। और ब्रह्मा कुमारी का राजयोग तो साइंटिफिक है। हम बैठे बैठे मन और बुद्धि के द्वारा सुप्रीम सोल, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जिसको कहते हैं, जो 5 तत्वों की दुनिया से पार है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम जब भी परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी फ्लो होना चालू होता है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो परमात्मा शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का सागर है। उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती है। अभी इसका प्रूफ क्या है कि ये काम करता है? पहले हम थ्योरी को देखेंगे। आज हमको पता चला है कि जितना हम बॉडी कॉन्शियस होंगे उतना हमारे अंदर अहंकार होगा, जितना अहंकार होगा उतना नैरो माइंडेडनेस होगा, मैं और मेरापन आ जाता है। जहां मैं और मेरापन है वहां सभी विकार आ जाते हैं, और जहां सभी विकार है वहां पे क्या होता है कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करती है, और ऑटोनॉमिक सर्विस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और हम डिस ईज हो जाते हैं। हम अपनी ईज को गवा बैठते हैं, इसको कहते हैं डिस ईज। आपकी ईज चली जाती है और आप बीमार पड़ते हैं। और जैसे ही आप समझते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो आप ईगोलेस हो जाते हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस आ जाता है, आपके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है, और आप ट्रस्टी बनते हैं। ट्रस्टी बनेंगे तो आपके अंदर के विकार चले जाएंगे, और आपकी वही अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो पहले स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती थी, अभी वो रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज करती है, और हमारे अंदर बैलेंस आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ता है, और हमारे अंदर की टीम पॉजिटिव होती है, थॉट, इमोशन, एटीट्यूड ऑफ मेमोरी। तो ये टीम पॉजिटिव होती है तो हमारे अंदर ईज आ जाता है और हेल्थ बढ़ता है। तो राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी का साइंटिफिकली ये देखा गया है कि वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आता है, विल पावर बढ़ती है, बिलीफ सिस्टम को बदलता है, क्लैरिटी आती है, डिसीजन अच्छा होता है, संघर्ष कम हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और जैसे आप राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे तो आपके अंदर जो सुप्रा कॉन्शियस है, जिसको हम कहते हैं कि अनादि संस्कार, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। और जैसे ही अनादि संस्कार जागृत होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के ब्लॉकेजेस ओपन होने लगते हैं, सभी बीमारियां ठीक होने लगती है। मेरे पास इसके बहुत केसेस है, और ये जीन्स तक चला जाता है। हमारे जीन्स के अंदर टीलोमियर नाम का एक हिस्सा होता है। टीलोमियर ये लेंथ डिसाइड करता है कि आप कितना लंबे जियोगे, इसलिए योगियों की आयु बहुत लंबी होती है। हमारी अभी जो दादी है वो 99 ईयर की है, जो पहले वाली दादी थी 104 साल की थी, ब्रह्मा बाबा 93 ईयर्स के थे, सीधा बैठते थे। ये क्यों होता है कि योग से स्वास्थ्य बढ़ता है, माना योग का इफेक्ट जीन्स के ऊपर आता है। जितना टीलोमियर का लेंथ आपका अच्छा होगा उतना आपका स्वास्थ्य बढ़ते जाएगा, और जो टेंशन वाले होते हैं उनका टीलोमियर का लेंथ कम हो जाता है। तो अभी हमारे पास डेटा है कि टीलोमियर लेंथ बढ़ता है, और इसके ऊपर स्टडी हुआ है, ये सबसे बड़ा स्टडी है इस समय का, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टडी है, इंडियन जर्नल ऑफ हार्ट में पब्लिश हुआ, कि जो लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं उनके हार्ट की आर्टरी ओपन हो जाती है। आप ये फोटो देख सकते हैं, 90% ब्लॉक आर्टरी थी पहले की, 98, और 2 साल के बाद आप देख रहे हैं ये आर्टरी पूरी तरह से खुल गई, कोई एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हुआ, केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये है दूसरा पेशेंट सुमन, इसमें 2 आर्टरी ब्लॉक थे, 90% 2 जगह पे, और ये पेशेंट भी 1 साल के अंदर इसकी दोनों आर्टरी खुल गई, और ये स्टडी पब्लिश हो चुके हैं। ये तीसरा आप तो बहुत शॉकिंग है, BR पांचाल, मैं इस पेशेंट को नहीं भूल सकता, इसका 100% ब्लॉक था, और ये डर गया, ये ब्रह्मा कुमारी के पास आया, इसको बाईपास नहीं करना था। आप देख रहे हैं इसकी पूरी आर्टरी खुल गई, 100% आर्टरी ब्लॉक थी। तो हमारी आर्टरी ओपन हो सकती है अगर हम यहाँ से अपने आप को ओपन करेंगे, चार्ज करेंगे मेडिटेशन से।
मैं तो मेडिटेशन नशा मुक्ति में सेवा देता हूँ। ये स्टडी तंबाकू ड्रग्स के ऊपर है। हमने ये स्टडी पूरे भारत के लोगों में की, 25 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में। और हमने क्या देखा कि जो लोग नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं, 97% लोगों का नशा छूटता है। ये पब्लिश स्टडी है। 64% का 1 महीने में छूटता है, बाकी धीरे धीरे छोड़ते हैं। लेकिन नियमित राजयोग का अभ्यास करेंगे तो राजयोग एक अंतरराष्ट्रीय मेडिटेशन है जो 140 देशों में सिखाया जाता है। और इसके अंदर सभी योग समाये हुए हैं। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, संन्यास भी है। विशेष है कि ये किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको कर सकता है, किसी भी जात उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है, स्त्री पुरुष। हमारे ब्रांचेस मुस्लिम कंट्रीज में भी है। मेरे लेक्चर होते हैं डेली, जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं। तो मुझे भी पता नहीं था कि अरब कंट्रीज में मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, चाइना में सुन रहे हैं, अबू धाबी में सुन रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को भी ये ज्ञान समझ में आ। अभी कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान से एक लेडी ने फोन किया था। तो लोग सुन रहे हैं और लोगों को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ये परमात्मा का काम है, किसी देहदारी का काम नहीं है। और ये मेडिटेशन आंखें खुली रख के किया जाता है। तो ये कर्म योगा है, क्योंकि आंख खुली रख के काम करते वक्त भी हम उस अवस्था को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे दादी जानकी का हमने ईजी देखा, दादी जानकी ने आंखें खुली होते वक्त डेल्टा स्टेज को मेंटेन किया। तो हमारे बहुत भाई बहनों के ऊपर अभी स्टडीज हो रही है, दिल्ली के DRDO के साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे कि जो अच्छे योगी है वो अपनी अवस्था को मेंटेन कर सकते हैं। ये साइंटिफिक है। स्पेशल ये किसके लिए है? जो लोग अभी जैसे बूढ़े लोग हैं, जिसका कमर दर्द है, घुटना दर्द है, जो आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, वो लोग राजयोग का अभ्यास कर सकते। यहाँ तक ही नहीं, जो लोग अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, वो लोग भी राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। हमारा 7 डेज कोर्स ब्रेल लिपि में अवेलेबल है। गूंगे बहरे सभी राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल है। मैंने अभी G20 में इसका प्रेजेंटेशन दिया और मैंने यही कहा कि राजयोग एक ऐसा योग है जो कि हमारे बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है, यूनिवर्सल है। और सबसे बड़ी बात कि ये फ्री में सिखाया जाता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो राजयोग से हम हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारे मन को शक्तिशाली कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। Om Shanti sir. Thank you so much, Dr. Sachin Parab sir. Dear participants, if you have any questions, you can ask. Yes, or you can raise your hand so that Dr. Sachin sir will give your answer. But it will be, very short because sir has the next program. Sir has to do. I'm sorry, मेरा ना अगला प्रोग्राम है। मैं इचल करंजी में हूँ। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं 5 से 6 ही दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना है। विवेक ने किसी ने हार्ट रेस किया है। आप टाइप कर सकते हैं या पूछ सकते हैं प्रश्न। Yes, Dr. Vivek, I will allow you to talk. You can ask any question. Dr. Vivek, something. Vivek, yes, किसी ने तो hand raise किया है। विवेक नाम से कोई है? Yes, please ask. If you have any doubt. विवेक जी बताइए, बोलिए। अनम्यूट करिए आप। ओम शांति सर। Yes, yes, बोलिए बोलिए। A very good evening, sir. I have to ask about that blockage. You said 100% was there, and it was reduced to 0% by meditation. So how it was possible? आप ना वो स्टडी को पढ़ो। हमारा स्टडी पब्लिश हो चुका है। इसमें कोई मिरेकल नहीं है। पहला ये स्टडी फॉरेन में हुआ था 1990 में, डॉक्टर डीन ऑर्निश। इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया था कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो हम बॉडी को रिवर्स। ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें कोई मिरेकल नहीं है। जैसे किसी का पेट बढ़ता है, ठीक है ना, तो पेट के सामने चर्बी आती है। आप डाइट को कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, वो चर्बी गायब हो जाती है। तो ऐसे ही टेक्निक है। अगर हम डाइट को ठीक मैनेज करते हैं, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज,
तो ये आर्टरी ओपन होती है। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये ओवरनाइट नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। इसका sir. सिस्टमेटिक, हाँ इसका सिस्टमेटिक फॉलो करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा अगर आप रियली इसमें इंटरेस्टेड है तो आप खुद जाके इन पेशेंट से मिलो। हमारे माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में ये स्टडी चलती है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो आप ये स्टडी को पढ़ोगे तो उसमें मेथड्स वगैरह बताया हुआ है, ये कैसे काम करता है। तो हमको भी ये बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ, हम ये सब बातें मानते नहीं है, लेकिन आज रिवोल्यूशन हो रहा है बहुत बड़ा। जैसे डायबिटीज का मैंने अभी तक बताया नहीं, डायबिटीज हमको बताया जाता है एक बार इंसुलिन चालू किया बंद नहीं होता है, एक बार डायबिटीज हो गया माना आपको दवाई लेनी है। आज मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट है जिनका इंसुलिन बंद हो चुका है, इंसुलिन बंद हो चुका है, 40 यूनिट 80 यूनिट, दवाइयां बंद हो चुकी है और वो रेगुलरली चेक कर रहे हैं, बीपी की दवाइयां बंद हो चुकी है। अब ये कैसे काम करता है हमको नहीं पता, लेकिन हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारे मन का बहुत बड़ा रोल है, जितना हमारा मन पॉजिटिव रहेगा हम उसमें से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you. And happy Doctors Day, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you. Yes, Dr. Munishwari, I will take one or two participant, otherwise, yes, Dr. Munishwari, you want to ask any question? Kindly unmute yourself and ask any queries. Dr. Munishwari, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर मुनीश्वरी, अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछिए आप। ओके, आर्या, आर्या कोई नाम से कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, हाँ तमीम सैयद बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। हेलो, जी बोलिए, जी बोलिए। हैप्पी डॉक्टर्स डे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, बोलिए। बताया सर, जो 7 डेज में आप देने वाले हो, तो ये 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा क्या? एक पोर्शन रहेगा उसका सिर्फ? ये कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी जी, जैसे कि सर ने लास्ट में बताया कि 7 डेज में एक कोर्स सर कंडक्ट करने वाले हैं। जी जी, हेलो, हाँ हाँ सर बोलिए, कोर्स के बारे में पूछ रहे सर वो। हाँ किसका प्रश्न है क्या, या अदरवाइज आई विल लीव? कोई प्रश्न है? Just sir, wait for 1 to 2 minutes sir, so that I can do vote of thanks. And एक तमीम सैयद नाम के कोई है, वो पूछ रहे कि वो जो 7 डेज का कोर्स है, वो कोर्स करने से वो हो जाएगा क्या, ऐसा उनका कहना है, विद इन दैट पीरियड। नहीं नहीं नहीं, इतना इजी नहीं है, इतना इजी होता हाँ, तो वही मैं मेरा- वही सोच रही हूँ। यस यस, आपको कोर्स बेसिक है, बेसिक सीखने के बाद Sorry, sir has left. Might नहीं, be- नहीं, आ गए सर आप। Okay. जी ज्वाइन हो गए सर, शायद उनका ऑडियो कनेक्ट। हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है सर आपका, बोलिए सर। आपका कोर्स करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 1 महीने में तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 से 3 महीने के अंदर। वो भी आपकी लगन के ऊपर है कि आप कितना लगन से प्रैक्टिस करते, रेगुलर करते। मैं चाहूंगा आप कोर्स कर लो और 3 महीने तक हमारा डेली प्रैक्टिस करो और फिर देखो कितना फर्क पड़ता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। Okay, thank you all the participants. I would like to express vote of thanks. First of all, I am very much thankful for Brahma Kumari Vishwa Shanti Sarovar Jamta Nagpur for giving us opportunity to collaborate with you, and respected Dr. Sachin Parak sir has accepted our invitation for giving a lecture on body meditation for healthy life on the occasion of Doctor's Day. So I really thank you, Manisha Didi, for her permission to deliver the lecture to Dr. Parak sir, and I really would like to thank you B.K. Ramchandra जी, जिन्होंने हमें बहुत ही मदद किया है। इसके साथ डॉक्टर उल्लास सर का भी उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी हमें टेक्निकली बहुत सारी हेल्प किया।
और सभी ब्रह्म कुमारी परिवार के जो वरिष्ठ सदस्यगण और जो उन्होंने हमें सपोर्ट दिया, उसी के लिए हमारा ऑन बिहाफ ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च एंड करियर एकेडमी वी रियली थैंक यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज समय निकाल के यहाँ इस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है, इनका मैं आभारी हूँ। थैंक यू वंस एंड ऑल, थैंक यू और हैप्पी डॉक्टर्स डे आप सभी को। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, या हम ईश्वर से मनोकामना करते हैं। And thank you Snehal also for coordinating very nicely. So thank you once all, and I will now end the meeting. Thank you Thank so you much, so much, sir. Thank you. for guidance.